तो जितना आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो कि नेचुरल है, क्यों नहीं बता रहे कौन से इंजेक्शंस लिए थे, मेरे पास तो वीडियो भी है। एंड मेरे डाइट के पैसे दे दो ना, एटलीस्ट हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को फिट रखने के लिए। टमी तो I don't even follow them, but both of them keep appearing on my Snapchat feed. Don't mind the tea though. I had genuinely thought she lost weight naturally, but looks like that's not the case. Now she gave Rohi new content to milk. Whenever her video starts to go low, she will make a video on Rohi. Though Rohi is no saint, it's the consequences she faces each time. As Sahil said, tea ले लो कहते कहते अब खुद गिर गए ना तुम्हारे ऊपर. But she is replying to Rohi's comment that Rohi apparently made on her Insta story. They are both not worthy of trust, to be honest. Well, personally, I guessed that before because how fast she lost so much weight seemed fishy to me. Also, after watching her gym workout videos, she doesn't know the basic of working out, so it didn't seem possible. Also, the way she had a drastic hair loss, that hair loss was the most giving part. She says it's PCOD, but she always had it. How come she still had thick hair before and only started losing after losing weight? Sus, I think she always had less hair. She wore clip-on. What a scam Rohi and her partner are running. Taking injections and claiming मेरे boyfriend ने पतला किया मुझे. उसका plan ले लो girlies. The way she sells her boyfriend's program on each and every piece of content, बेचारी, I feel bad for her. भगवान इतना भी desperate ना बनाए एक आदमी के लिए जिंदगी में. Exactly man, not only his business, but also selling his the most caring, loving, gentleman, green flag boyfriend image. Imagine in spite of everything, he still doesn't marry her. I know Bharti is kinda problematic and she tries to stay relevant this way, and some of you might also consider her insecure and jealous. But keeping everything aside, this girl does give tea on point, but unfortunately due to her presentation, people do not believe her. भाई अगर लिया भी है तो क्यों बताना है? She knows she has a mass following and these injections do have side effects on some people. Why would she want to be the one person to blame? I think you all are expecting too much transparency from people you don't even know personally. Guys, take a chill pill. इतना इन्वॉल्व क्यों होना किसी और की लाइफ में? You're totally missing the point here. ना बताना is not the problem. The problem is she is lying and using it to sell her boyfriend's weight loss program, and that my friend is not right. Hey guys, welcome back to कुछ भी. आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे बिटर दुश्मनी के बारे में, जो एक बार फिर से स्नैपचैट स्टोरीज से निकलकर मेन स्ट्रीम हो गई है. Yes, I'm talking about रोही राय एंड हर एक्स बेस्ट फ्रेंड भारती, ऑल्सो नोन एज निभा. अब इन दोनों का जो फॉल आउट हुआ था वो कोई नई बात नहीं है. सालों पहले इनकी दोस्ती टूटी थी, बट भारती ने इस बार जो बॉम्ब हो रहा है वो रोही की पूरी क्रेडिबिलिटी को हिला सकता है. एलिगेशंस कुछ ये है फेक वेट लॉस और अननेचुरल इंजेक्शंस के. क्या रोही वाकई में मेहनत कर रही है या ये सब एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कैम है? लेट्स डाइव डीप. तो किस्सा शुरू होता है भारती की स्नैपचैट स्टोरीज से. भारती ने पहले रोही को मिमिक किया, उनका बात करने का स्टाइल, उनका जो तरीका है उसको मिमिक किया. तो वो भी यूट्यूब पे है, व्लॉग्स बनाती है, और जब भी उसके व्यूज में डिप आते हैं या उनको हाइक चाहिए होता है तो उसको रोही याद आ जाती है. बट इस बार उन्होंने सिर्फ उसका मजाक नहीं बनाया, कोई टी शेयर नहीं की, बल्कि कुछ एलिगेशंस लगाए हैं रोही पे जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है. भारती का क्लेम है कि रोही ने वेट लॉस कोई डाइट या वर्कआउट से नहीं किया है, बल्कि वेट लॉस इंजेक्शन से किया है. उन्होंने यहाँ तक के ये भी कहा है कि उनके पास वीडियो प्रूफ है जहाँ रोही ये इंजेक्शन लेते हुए दिख रही है. और सबसे कड़वी बात भारती ने जो कही है वो है, हमें तुम्हारी तरह डाइट के लिए किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ती है, हमें फिट रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे लिए प्लीज डाइट खरीदो, मेरे को डाइट करना है. I mean, ये भीख वाला कमेंट सीधा रोही के लाइफस्टाइल और उनके स्ट्रगल पर अटैक करता है. तो चलिए जानते हैं कि क्या निभा की बातों में दम है या ये सिर्फ एक वेंजफुल एक्स बेस्टी का गुस्सा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ. आजकल इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में ओज़ेम्पिक और मंजारो का नाम बहुत लिया जा रहा है. ये इंजेक्शंस एक्चुअली डायबिटीज के लिए है, बट लोग इसे फैट लॉस के लिए यूज करते हैं. तो मंजारो जो है उसको लेने से आपकी एपेटाइट ब्लॉक हो जाती है, वो आपकी एपेटाइट को ब्लॉक कर देता है, आपको भूखी नहीं लगती वो खाने के बाद. तो इससे वेट लॉस फास्ट कम होता है, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही गंदे होते हैं, जैसे कि नोजिया, डिजीनेस और एक हॉलो लुक जिसको ओज़ेम्पिक फेस कहते हैं. उससे आपकी जो स्किन है वो डार्क एंड डल हो जाती है, आप एजेड लगने लगते हो.
लेकिन अगर हम रोही का केस यहाँ पे देखें, इफ यू फॉलो हर, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इट इज नॉट ओवरनाइट। वो पिछले कुछ 1-1.5 साल से वर्कआउट रेजिम और डाइट फॉलो कर रही है। अननेचुरल वेट लॉस में अक्सर स्किन लूज हो जाती है, फेस एजेड दिखने लगती है, पर रोही के केस में शी लुक्स फिट एंड ग्लोइंग। तो लॉजिक तो यही कहता है कि मेहनत रियल है, बट कंट्रोवर्सी इसलिए इतनी बढ़ती है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एंगल छुपा है। अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी के एक बड़े और डार्क साइड पे। देखो, अगर ये सच है कि रोही ने इंजेक्शंस लेके वेट लॉस किया है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कौन होते ही कहने वाले। बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये सिर्फ छुपाने वाली बात नहीं है कि ओके शी टुक इंजेक्शंस एंड शी इज जस्ट हाइडिंग इट। बात है पिछले 1 सालों से रोही का जो पूरा कंटेंट उनके वेट लॉस जर्नी और उनके बॉयफ्रेंड रोहित के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। रोही ने बार बार अपने व्लॉग्स में, इंस्टाग्राम में यही दिखाया है कि रोहित ने उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में शिफ्ट किया, कैसे रोहित के बनाए हुए डाइट प्लान्स और वर्कआउट स्केड्यूल्स की वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर रोहित के फिटनेस और डाइट प्लान्स मार्केट में काफी सेल भी हुए हैं। फैंस रोही को एक सक्सेस स्टोरी मानते हैं, वो रोहित को पैसे देते हैं, उनके प्लान्स खरीदते हैं, ये सोच के कि अगर रोही ऐसी दिख रही है, वो ऐसी दिख सकती है, रोहित के प्लान्स अगर रोही को चेंज कर सकते हैं तो उसके प्लान्स हमें भी चेंज कर सकते हैं। नाउ इमेजिन इफ भारती के जो क्लेम्स है वो सच है, इफ इट्स ट्रू, अगर रोही वाकई इंजेक्शंस ले रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो और रोहित मिलकर ऑडियंस को चीट्स और फॉल्स ड्रीम्स बेच रहे हैं। ये तो सीधा सीधा फाइनेंशियल फ्रॉड और इमोशनल चीटिंग हो गई फैंस के साथ। तो ये तो वही बात हो गई कि ये लोग खुद शॉर्टकट्स ले रहे हैं और दुनिया को नेचुरल मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं ताकि इनके प्लान्स सेल हो सके। अगर ये प्रूव होगा तो रोही और रोहित दोनों का इमेज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्कैम बन जाएगा। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे रोही का जो जर्नी है वो बहुत रियल लगता है। इन्फ्लुएंसर की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल जरूर होती है, पर मैंने देखा है उसके वीडियोस जहाँ पे वो मेहनत करते हुए नजर आती है। रोही का जो ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्रेजुअल नजर आता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस में होता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारती का भी एक सेट पैटर्न है। जब भी उन्हें लाइमलाइट चाहिए होती है वो रोही को टारगेट करती है। एक वेंचफुल एक्स बेस्टी की बातों पे बिना प्रूफ के यकीन करना भी गलत होगा। दोस्ती टूटने के बाद किसी की पर्सनल लाइफ को वेपन की तरह यूज करना भारती की पर्सनालिटी पे ज्यादा सवाल उठा रहा है। आई जस्ट होप कि ये जो क्लेम है ये बेसलेस निकले, क्योंकि अगर ये सच निकला तो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से लोगों का ट्रस्ट हमेशा के लिए उठ जाएगा। जब तक हम वो वीडियो प्रूफ नहीं देख लेते, हमें दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये वाकई रोहित के प्लान्स का कमाल है, या भारती के पास वाकई कोई ऐसा वीडियो है जो रोही का करियर तबाह कर सकता है? क्या रोही को अपना साइड क्लियर करना चाहिए या साइलेंस इज द बेस्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।